सर सर वो अवार्ड भी हाँ एक सेकंड। सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि माननीय प्रज्ञा भारती जी का, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर जयप्रकाश काबरा जी, हमारी सीईओ मैम सुनीता काबरा जी और मीडिया बंधु, मीडिया जगत से जुड़े सारे बंधु लोगों का, आप सबों की उपस्थिति आज हमें गौरवान्वित भी कर रही है, अभिभूत भी कर रही है और आगे बढ़ने को प्रेरित भी कर रही है। हमारी मुख्य अतिथि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माननीय प्रज्ञा जी का जीवन ही जीव मात्र के लिए समर्पित है। जीव मात्र से आशय मानव रहित समस्त जीवात्माओं से है। आपके नाम का अर्थ ही बुद्धिमत्ता है माननीय, और जब बुद्धिमत्ता जीवन में सकारात्मकता से जुड़ जाए तो हम सुनारों की भाषा में उसे सोने पे सुहागा कहते हैं। हम सबों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदया, आपने जो बीड़ा उठाया है जीव मात्र के कल्याण का, हम रेशम परिवार आपकी इस भगीरथ यात्रा में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। भगवत कृपा आपके ऊपर प्रारब्ध से है, और ऐसी कृपा जिन पे हो जाए उनके लिए अपनी दो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं। धर्म रेशम, कर्म रेशम, जीवन का हर मर्म रेशम, हो कृपा जब ऐसी शिव की, जगत के सत्कर्म रेशम। आप सबों का पुनः आभार, अभिनंदन। और थोड़ा सा परिचय में माननीय प्रज्ञा जी के बारे में देना चाहूँगा। प्रज्ञा भारती जी लाइफ कोच, स्पिरिचुअल हीलर, holistic wellness expert and director SAM, self assessment and management program especially curated to give right direction to the youth of the country. Under SAM, more than 15 lakh youth has been benefited till now. She is a dynamic speaker with an undisputable command over the subjects of her oration. She has enthusiastically addressed several groups of important people, including Indian Armed Force, civil servants, Delhi Journalist Association, Women Commission, ET, all on a plethora of issues. She is a national panelist on media, expressing her views on social and vital issues on various news channels like ABP News, NDTV, India News, Headlines Today, News 24, Times Now, G News, etc. She has worked selflessly for the reformation and rehabilitation of the Tihar jail inmates and also contributed for the development of visually and physically challenged section of the society. She has actively participated in seminars and conferences all across the nation on numerous subjects: gender equality, skill development, climate change, value-based leadership skills, water conservation, heritage preservation, to mention a few. She has also fearlessly put forth her revolutionary approach by raising a platform for the youth of the country by inspiring them to come forward and discuss the crucial and burning issues such as mental health, child abuse with Nobel laureate Kailash Satyarthi, human rights with Honorable Chief Minister of India. She has lent her wisdom to the educationists of our country by sensitizing them on the educational reforms and study patterns from the Vedic wisdom to help the younger generation contribute in the larger good of our country, and not only impacted the thought process of those teaching in the educational institutions but also those leading the institutions. She has been a vibrant speaker at motivational workshops in schools, colleges and corporate houses across the nation. She has many awards and
accolades to her credit Uttarakhand Ratna Award, Bharat Gaurav Samman, Yuva Gaurav Samman, Excellence in Women Leadership Skill Award, Sankalpwan Nari Samman, Haryana Achievers 2020, Literary Excellence Award 2020, to mention a few for her contribution in the awakening and empowerment of the younger generation and women of the nation. अब आप लोगों का एक बार पुनः आभार और अभिनंदन। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रज्ञा भारती जी से कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबों को अनुग्रहित करें। माननीय प्रज्ञा भारती जी। सबसे पहले तो जितने भी लोग आए हैं उनको मेरा नमस्कार। एंड इट्स अ ग्रेट एंडेवर बाय रेशम, बाय सुनीता जी एंड द एंटायर टीम। और ये जो भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आज का युवा भूलता चला जा रहा है, आज के लोग भूलते चले जा रहे हैं, उसके लिए हम सब ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है अपने कंधों पे। और रेशम भी उसमें अपना बहुत अच्छा सहयोग निभा रहा है। और मैं आप सभी को बधाई देती हूँ, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने अभी एक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ज्वेलरी शोरूम है, बट साथ में मुझे पता चला है कि आप लोगों ने एक रेंज भी लॉन्च की है। इंडियन आयुर्वेदा को आगे रखते हुए, भारतीय संस्कृति को आगे रखते हुए एक रेंज लॉन्च की है, जिसमें ये हवन के स्टिक्स हैं और जिससे कि एक पूरा वातावरण है वो प्योर हो जाता है। और आप देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नैतिक मूल्यों से बहुत दूर जाती जा रही है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अभाव देखने को मिलता है। हर कोई कॉन्टेम्पराइजेशन, मॉडर्निटी के नाम पे बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि वेस्टर्नाइजेशन की जगह ये वेस्ट टॉक्सिफिकेशन बन जाए और हमारे युवाओं को खत्म कर दे। इसीलिए हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये जितना भी आपने सुना कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, सैम के माध्यम से एक मुहिम है जिसके तहत हम युवाओं को बदल रहे हैं। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक्चुअली टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द यूथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ये देखिए, इंसान जो है वो 3 स्तरों पे जीता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल लेवल, देन कम साइकोलॉजिकल लेवल एंड देन इज द स्पिरिचुअल लेवल। अगर हम फिजियोलॉजिकल लेवल की बात करें, शारीरिक स्तर की बात करें, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं, अपनी आउटर अपीयरेंस को लेके बहुत अवगत रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल हेल्थ, जो आज के समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं। एक बहुत ही ज्वलंत हमारे सामने केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। अब नहीं जाते हैं उसके डिटेल में, जो भी होगा निकल के आएगा, बट एटलीस्ट ये तो सामने आ रहा है कि आज का युवा मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होने से जूझ रहा है और हमें उसका साथ देना होगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो जो सुसाइडल रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। लॉकडाउन का समय आपने देखा कि कैसा रहा, कोरोना काल का ये समय। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जो आज से पहले सुनने को नहीं थे। डिप्रेशन के केसेस, स्ट्रेस के केसेस। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को एक ऐसे तरीके से, एक ऐसी टेक्निक से जोड़ा जाए जो उनके अंदर से ही स्वतः ही एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करे और उनको अंदर से ही खुशी मिले, एक नए जीने का तरीका मिले, उन्हें एक नजरिया बदले। बट ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि फुर्सत तो किसी के पास है नहीं है। तो इसके लिए हम सभी को अपने स्पिरिचुअल लेवल से कनेक्ट होना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल लेयर ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हम उस लेवल को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप सोल लेवल पर जागरूक हो जाते हैं तो फिर जीवन में परिवर्तन आता है। एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप देखिए, एक नन्हा सा बीज है ना, आप एग्जाम्पल लीजिए, एक ऑरेंज है, वो 3 सतह पर होता है। एक आउटर पील, जिसे आप देखने में आप कहते हैं कि कैसा है, देखने में कैसा है। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप देखते हैं पहले वो देखने में कैसा है, हमें नहीं पता उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, बट आप जब उसे देखते हैं तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं। मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल तो बाद में आता है, विच इज द इनसाइड थिंग,
यानी जैसे आप देखिए पल्प एंड जूस, उसके बाद आता है सीड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीज न जाने कितने और उनको जन्म दे सकता है। और ये बीज क्या है? सोल, आत्मा। तो हमें आत्मा के स्तर पर जागरूक होना होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि युवा जागरूक हो जाए, युवा को सही दिशा मिले, और युवा ही क्यों, भारत के हर व्यक्ति को सही दिशा मिले, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, नवल भोर आए, उसके जीवन में एक नई उमंग आ जाए, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर भी जागरूक होना होगा। और आज बहुत ही एक अच्छा दिन है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी बहुत से कार्य कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों को जाके उनको वैल्यूज दे रहे हैं, कॉलेजेस में बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है। इसीलिए एक ये जो आपने कार्य किया है कि जब मेडिटेशन में कोई बैठे तो उसे प्योरिटी मिले, उसे प्योर वाइब्रेशंस मिले, सो आई वुड लाइक कंग्रेचुलेट यू रेशम वंस अगेन। और मैं बल्कि सभी से कहूंगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और जुड़ के, इनके साथ जुड़ के भी आगे चल के भी भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए काम किया जा सकता है। सो एक सवाल है कि आज आपको ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित कर रहा रेशम, किस तरीके से समझते हैं इस अवार्ड की अहमियत? देखिए, मेरे लिए अवार्ड अप्रिसिएशन, इसका मतलब कि आपके काम को लोग जान रहे हैं, और जानने की ही बात नहीं है, वो इस बात को ये समझ रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है, समाज बदल रहा है, भारत को नई दिशा मिल रही है। और क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मुझे समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, 15 से ऊपर साल हो गए हैं समाज के लिए कार्य करते हुए, आध्यात्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही सम्मान का विषय है कि उन्होंने ऐसा सोचा। और अवार्ड मेरे लिए इसीलिए कीमती है क्योंकि ये आपके काम की पहचान है, और ये आपके काम के लिए अप्रिसिएशन है, इसीलिए अवार्ड की अपनी एक वैल्यू होती है। अवार्ड इसलिए नहीं क्योंकि वो एक अवार्ड है, बल्कि इसलिए ताकि लोगों को भी पता चले कि समाज में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, अगर आप समाज के लिए त्याग करते हैं, आप समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देते हैं निस्वार्थ रूप से। मैम, आप तिहाड़ जेल में भी आपने जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन का काम किया है, वहाँ का एक्सपीरियंस आप कैसा समझते हैं? क्योंकि वहाँ तो काफ़ी क्रिमिनल माइंडोलॉजी के लोग आते हैं, उन लोगों को आपने कैसे अपने मैसेज कन्वे किया कि आप लोग कैसे मेडिटेशन और रिहैब कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू तिहाड़, आई गेस इट्स रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग। देखिए, एक टू फोल्ड डेवलपमेंट पे हम कार्य कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आउटर डेवलपमेंट, जैसे कि एवरीबडी, जो भी हमने बात करी, कंसर्न अबाउट द पर्सनालिटी, हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, बट उसके साथ आता है इनर डेवलपमेंट। आउटर डेवलपमेंट के साथ आता है इनर डेवलपमेंट। सो टू फोल्ड डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। तिहाड़ में जब हम गए, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट मिले हमें वहाँ पे, और उनकी एक अलग मानसिकता है। बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल घिर चुके हैं, और उनको उस डिप्रेशन से बाहर लाना, उस मानसिकता से बाहर लाना, पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है एक्चुअली में। बट देन इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस एंड प्लेजर टू टेल यू कि हमने वो अचीव किया, और आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट से बाहर निकल चुके हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। लास्ट में आप रेशम के लिए क्या कमेंट देना चाहेंगे? रेशम को आप आज यहाँ आके देख रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को और इनके काम को किस तरीके से? जी, तो रेशम के लिए सुनीता जी और जय भाई साहब जिस तरीके से लगे हुए हैं, और भारतीय संस्कृति को आगे रखकर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, और जो सामान को बेचने में उनका ध्यान है,
बट मैं ये कहूँगी मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों को काफ़ी समय से जानती हूँ और मुझे ये समझ में आया कि जय भाई साहब और सुनीता जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, साथ साथ भारतीय संस्कृति के संवर्धन पे भी फोकस कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स लाइक कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ रेशम एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स ऑल्सो। इनफैक्ट मैम की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सी बार हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिकॉज वी आर अ बिजनेसमैन, राइट। बट इन माय ओपिनियन एंड इनफैक्ट हमारी सारी टीम की ओपिनियन यह है कि द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर योर पेट्रॉन्स, राइट। बिकॉज वी आर लाइक, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे मेरी धूप बत्ती हो, चाहे मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी हैं, बिकॉज पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी है, तो उस कारण से उनकी बजट के ऊपर कोई आँच नहीं आती। तो ये सब चीज़ों से द पर्पस ऑफ माई बिजनेस इज एक्चुअली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ माई पेट्रॉन्स एंड सेल्स एंड प्रॉफिट। जो हम बिजनेस में सोचते हैं वो हमारी ओपिनियन ये है कि दोज आर ओनली बाई प्रोडक्ट्स, ओके। सो these are the बाई प्रोडक्ट्स, वो आएगी जब आपके पेट्रोन खुश हैं। सो दिस इज द फिलोसफी विच वी आर एक्चुअली कीपिंग in when we are carrying the Resham's philosophy. Thank you. Thank you.